Hello, students of class 11th. We are into the physiology part of the biology book. In that, we are studying the chapter excretion, excretory product and their eliminations. So in that, we have seen the excretory system of human being. Okay. And in the yesterday class, we have seen the overview of the formation of urine. So today we are going into more detail of this. How urine is getting formed, how it is getting concentrated. Okay? So the topic of today's lecture is process of urine formation. Okay? In yesterday's class, we have seen the role of and the functions of the nephron, different parts of the nephron. We have seen the functions of renal capsule. Okay, जो कि सॉरी renal capsule नहीं, renal corpuscle. Renal corpuscle और renal capsule में अंतर समझते हो? समझते हो? Renal capsule किडनी के बाहर का प्रोटेक्टिव कवरिंग और renal corpuscle yes glomerulus plus Bowman's capsule. So renal corpuscle, that is Bowman's capsule plus glomerulus. We have seen the function of this. Here, what is happening? Ultrafiltration. The second part of the tubule, that is PCT, that we have seen. What is happening here? Reabsorption and secretion, both are happening here. Third, ascending arm of Henle's loop. इसमें भी दो है, thin segment and thick segment. चौथा, descending arm of Henle's loop. इसमें भी thin segment and there is thick segment. Henle's loop के स्ट्रक्चर को आप देखिए, उसमें कहीं पर जो उसका आर्म है मोटा है, कहीं पर पतला है. आपके बुक में दिया हुआ है डायग्राम. Fifth, now the filtrate is coming in DCT and then DCT से फिर collecting tube में गया filtrate. So what is happening here in the ascending arm of the Henle's loop? Sorry, रुको, ये हम थोड़ा इसका पहले तो फिल्ट्रेट आ रहा डिसेंडिंग आर्म में ना. Henle's लूप में पहले नीचे गया तब मैं ऊपर गया. पहले डिसेंडिंग लूप में आ रहा, फ्लो उल्टा हो गया. Ascending arm up. What is happening in the descending arm? Water is getting absorbed, reabsorbed. And what is happening in the ascending arm? There are two things which is happening here. आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें थिन और थिक सेगमेंट में अलग अलग चीज हो रहा है. थिन सेगमेंट में यूरिया इज गेटिंग सिक्रीटेड. ठीक है, यूरिया अभी इसका बहुत बड़ा रोल है, आगे अभी आप समझोगे. यूरिया इज गेटिंग सिक्रीटेड. एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, यूरिया एब्जॉर्ब हो चुका था. कहां पर? पीसीटी में. सॉरी, यूरिया एब्जॉर्ब हो चुका था. कहां पर? यहाँ पर रीनल कॉर्पसल में ही फिल्टर होकर के आ गया सारा यूरिया, जो कि अब ल्यूमेन में है. लेकिन ल्यूमेन में फिर अलग से भी यूरिया आ रहा है, अलग रूट है. एक रूट हो गया ऊपर से बॉमेंस कैप्सूल के थ्रू, ओके, रीनल कॉर्पसल से, और एक यूरिया एंटर कर रहा है thin arm of the ascending arm, thin segment of the ascending arm of Henle's loop.
वहां पर भी यूरिया एंटर कर रहा है। तो यहां पर लिखोगे इन द असेंडिंग आर्म थिन सेक्शन में सिक्रीशन ऑफ यूरिया, ओके, एंड इन द थिक सेगमेंट absorption reabsorption of NaCl is happening here, ओके। इस पर बहुत फोकस देना है आपको, समझना है कंसेप्ट। आगे हम बताएंगे अभी आपको कैसे यूरिन कंसंट्रेट होता है। फिर in DCT what is happening again here, the absorption and secretion of the substances in the collecting tube. What is happening? Water is getting absorbed and urea is also getting absorbed from here, okay. But the catch here is the substances which is getting absorbed is coming in the tissues of the medulla region of the kidney, and that tissue is called as interstitial medulla interstitium, okay? यहाँ पर पानी निकल करके मेडुला इंटरस्टिशियम में आ रहा है कलेक्टिंग ट्यूब से, ओके, और यूरिया भी निकल करके मेडुला इंटरस्टिशियम में आ रहा है कलेक्टिंग ट्यूब से, और वही यूरिया फिर सप्लाई हो रहा है थिन आर्म ऑफ द असेंडिंग लूप। यहां से निकला कलेक्टिंग ट्यूब से यूरिया, यूरिया एब्जॉर्ब हो करके इंटरस्टिशियम में गया, मेडुला इंटरस्टिशियम में, और मेडुला इंटरस्टिशियम से यूरिया इज अगेन एंटरिंग द ल्यूमन ऑफ दिस ट्यूब्यूल। द लोकेशन इज द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग आर्म ऑफ this loop, okay. Only in this region the cells are allowing the transport of urea, not in the other region. Only in the region which is specified here in the collecting tube, from there urea is getting absorbed in the interstitial medulla interstitium, medulla interstitium. तो अभी आप क्या देख रहे थे, ये हम लोग मोटा मोटी कल पढ़े हैं कि कैसे फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है। इसको लास्ट में हम फिर समराइज कर देंगे, लेकिन बीच में एक सेगमेंट जो अभी आप नहीं समझे हो अच्छे से, उसका नाम है काउंटर करंट एक्सचेंज, ओके। काउंटर करंट एक्सचेंज हो रहा है। पहले काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म को समझ लीजिए, उसके बाद हम सबको समराइज कर देंगे। व्हाट इज हैपनिंग इन द काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म? The land dwelling animals like us, the mammals, the यूरियोटेलिक ones, हम लोग भी, यूरिकोटेलिक की तो बात ही अलग है, वो तो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ यूरिन पास कर रहा है, ओके। हम लोग भी एक कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ यूरिन पास करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म। बहुत आपने पढ़ा है अभी लास्ट क्लास में कि हर मिनट कितना आ रहा है, 125 ml फिल्टर होकर के बाउमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड, इट इज एंटर एवरी मिनट 125 ml, okay. So one in 24 hours it comes around 180 liter, but in 24 hours you pass at on the max, or the normal average is 1.5 liter of urine per 24 hours. So you see here the urine, this filtrate, कौन सा filtrate? Glomerular filtrate is becoming the urine, okay, and this urine is concentrated in the terms of, किस चीज से concentrated है? वेस्ट प्रोडक्ट्स से concentrated है।
सवाल उठता है कोई भी सॉल्यूशन को अगर हम कंसंट्रेटेड बोल रहे हैं तो उसमें क्या चीज मिला हुआ है? दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, पानी मिला है, चीनी मिला है, नमक मिला है, क्या मिला है? पानी में क्या मिला है जिससे वो कंसंट्रेटेड है? तो यहाँ पर पानी, उस फिल्ट्रेट में वेस्ट प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं जिस जो कंसंट्रेटेड है। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या है? यूरिया वेस्ट, है ना? यूरिया चीफ प्रिंसिपल वेस्ट प्रोडक्ट, प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फाउंड इन यूरियोटेलिक एनिमल्स इज यूरिया। लेकिन क्या यूरिक एसिड नहीं बनता है बॉडी में? यूरिक एसिड भी बनता है, बहुत ही कम मात्रा में। सो यूरिक एसिड इज ऑल्सो गेटिंग एलिमिनेटेड। कुछ अमोनिया भी एलिमिनेट हो रहा है। अमोनिया इन द सॉल्यूशन इन द वाटर is in the form of is ionized, is in the ionized form. Okay, because of the destruction of RBC which is happening in the liver, oh, sorry, spleen and liver both. Okay, the principal component of the red blood cell is which protein? Hemoglobin. So the degradation of hemoglobin is also occurring at these organs, and because of that also the waste product will be contributed. Okay, every day lakhs or millions of RBCs is getting destroyed in the spleen per day. But every day millions of RBC is getting added in the blood stream from its point of origin, that is the bone marrow. हर सेकेंड बोन मैरो से लाखों आरबीसी नए नए ऐड हो रहे हैं आपके सर्कुलेशन में, और प्रति सेकेंड लाखों आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। उनका जब 120 दिन पूरा हो जा रहा है तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं स्प्लीन। तो इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, उस प्रोटीन के डिग्रेडेशन में ग्लोबिन पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट विल बी डिग्रेडेड इनटू अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स विल बी फर्दर यूटिलाइज्ड according to the need. But the heme part, when it is degraded, it is converted into bilirubin and biliverdin. This is a yellow substance, yellowish substance compound, and it gives the yellowish tinge to your tinge to the blood or the plasma. Plasma separate करोगे हल्का yellowish लगेगा, that is because of the bilirubin. If this bilirubin level gets high, the person suffers jaundice, पीलिया हो जाता है. Okay, so because of the destruction of RBC, this bilirubin is getting degraded. So this bilirubin is also waste product. Biliverdin, BIRDIN, creatinine, etc. क्यों इतना नाम लिखे? कोई एक वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है, कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें से जो सबसे चीफ और प्रिंसिपल है वो है यूरिया. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, and this is a multi-step process which occurs in different parts of the renal tubule. In some part ultrafiltration is occurring, in some part reabsorption is occurring, in some part reabsorption and secretion is happening, in some part again reabsorption and secretion is happening. Like this it goes on, and finally the urine is concentrated in the collecting tube. So the collecting, the water reabsorption in the collecting tube is the final step of the urine concentration. Finally यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है तब जब कलेक्टिंग ट्यूब से वाटर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है. ओके, इतना समझे?
अब देखिए इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रोल है। then what is happening here? Reabsorption and secretion, and then descending arm of Henle's loop. Here the water is coming out, so only only reabsorption is happening in the ascending loop of the Henle's. PCT, ascending arm of the Henle's loop, and and DCT and collecting tube. सॉरी, फिर से इन तीन जगह पर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन दोनों हो रहा है। पीसीटी, डिस डिसेंडिंग आर्म में असेंडिंग आर्म ऑफ द एंड डीसीटी, इन तीन जगह पर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन दोनों हो रहा है। अब देखिए रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन हियर इज इट इज हैपनिंग द लोकेशन, अच्छा वो हम लोकेशन बाद में, यहाँ पर लोकेशन हो गया रीनल कैप्सूल, हियर द लोकेशन इज पीसीटी, दूसरा का, एंड द थर्ड जगह पर जहां पर डिसेंडिंग आर्म ऑफ द हेनलीज लूप है, वहां पर सिर्फ रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनलीज लूप। रिकॉर्डिंग चल रही है? यस। आर्म ऑफ हेनलीज लूप, देन ascending, first thin segment of the ascending arm of Henle's, वहां पर क्या हो रहा है? थिन सेगमेंट में सिक्रीशन हो रहा है, देन सिक्रीशन इज हैपनिंग। कहां पर? चौथा लोकेशन है कहां पर? थिन सेगमेंट ऑफ ascending arm of Henle's loop, अब ठीक लिखेंगे तो उसका भी टी हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, थिन ARHL। Then what is happening in the ascending arm thick segment? थिक सेगमेंट में क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl हो रहा है। अभी आपको हम समझाएंगे, पहले इसको आप सुनिए। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl, it is happening in the thick arm. ओहो, यहाँ डिसेंडिंग, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ऑफ असेंडिंग आर्म, यहाँ शॉर्ट फॉर्म गलत ढंग से लिख दिया, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। इन ascending arm of Henry's loop, ठीक, ascending arm of Henry's loop, ओके।
रीएब्जॉर्प्शन। उसके बाद फिल्ट्रेट गया कहां पर, डीसीटी में। वहां पर क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन बोथ। एंड देन फाइनली इट इज कमिंग इन द कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब में हो रहा है क्या, एब्जॉर्प्शन, reabsorption only, and it is happening in the collecting tube. ओके okay? अब यहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका सिक्रीशन हो रहा है, वो फाइनल हम लास्ट में आपको कंक्लूड करा देंगे। मेनली क्या है आपको यहाँ पर समझना कि इस पूरे फ्लो में एक ऐसा स्पेशल रीजन है जिसकी वजह से किडनी में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया जा रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब समझते हो, ग्रेडियंट का मतलब होता है बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में। किसी चीज को हम अगर आपको कहें कि इसको ग्रेडियंट में लगाओ और आपको हम संख्या दे दें 5, 6, 8, 2, 3, आप कैसे ग्रेडियंट में लगाओ, दो तरीका से, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो इसी को ग्रेडियंट कहते हैं। और जब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं तो मतलब लोकेशन वाइज बढ़ते क्रम में है वहां पर कंसंट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, या घटते क्रम में, सी किडनी में, इस चीज को भी ध्यान रखिए। रीनल कैप्सूल हो गया, यहाँ पर कॉर्टेक्स है, द इनसाइड व्हाट यू सी इज पिरामिड। कौन सा पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड्स है ना। मेडुलरी पिरामिड में हेनलीज लूप और गया हुआ है। तो अब यहाँ पर किडनी का नेचर ऐसा है, दो भाग में है किडनी, दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेडुला। मेडुला में भी इनर मेडुला एंड आउटर मेडुला। पहले है आउटर मेडुला एंड देन इनर मेडुला। ओके, अब इसमें देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन्ड है, वह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है सिर्फ दो चीजों का, NaCl और यूरिया। इन दो चीज, ये दो कंपाउंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं मेडुला में, यानी किडनी के मेडुला के इंटरस्टिशियम टिश्यूज में, ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जो टिश्यूज है उसमें जो फ्लूइड है, वहां भी तो सूखा तो एकदम ड्राई नहीं है ना, कुछ पानी से फ्लूइड से सोक्ड है सारा टिश्यू। तो वहां पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाहर से भीतर की तरफ बढ़ते क्रम में, यानी कॉर्टेक्स हो गया, फिर सॉरी आउटर मेडुला और इनर मेडुला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, तभी समझ पाओगे प्यूर इंफॉर्मेशन अच्छे से। और एक टर्म है जिसको कहते हैं हम ऑस्मोलैरिटी। समझते हो ऑस्मोलैरिटी, द प्रेशर ऑफ वाटर, इसको वेग टर्म में समझ लो कि प्रेशर ऑफ वाटर। कल आपको बताए थे सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। नाउ यू कैन से, टेल मी द ऑस्मोलैरिटी ऑफ, कल का जो सॉल्यूशन था ए, जिसमें 10 मिलीग्राम सॉल्ट एडेड था 100 ml में, और दूसरा सॉल्यूशन था बी, 20 मिलीग्राम था 100। नाउ टेल मी द ऑस्मोलैरिटी ऑफ वेदर सॉल्यूशन ए इज मोर और सॉल्यूशन बी इज मोर।
लेस ऑस्मोलैरिटी मीन्स लेस ऑफ सोल्यूट। ओके, तो एक्चुअली किडनी में बाहर से अंदर की तरफ ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये यूनिट हो गया। ठीक है, और आपके ब्लड का ऑस्मोलैरिटी है लिटिल लेस देन 300, अराउंड 290। अब आगे आप समझते जाओगे स्टेप वाइज मैनर में कैसे ये बढ़ रहा है घट रहा है। आउटर मेडुला का ऑस्मोलैरिटी स्ट्रेंथ है, आउटर मेडुला यानी आउटर मेडुला रीजन हो गया कहां से कहां के बीच में, कॉर्टेक्स से मेडुला के एक रीजन तक आउटर मेडुला है। तो इस आउट कॉर्टेक्स और बीच में फैला हुआ है। आप फिगर में आपका होगा, देखिए, हाँ ये फिगर बुक में निकालो। सी, कैन यू सी द कॉर्टेक्स osmolarity, osmolar osmolar strength of cortex here in this picture? You can see 300 milliosmol per liter. It is written left hand side. Okay, उसके बाद आउटर मेडुला का ऑस्मोलैरिटी स्ट्रेंथ इज बिटवीन 300 टू 900 अप्रॉक्स, है कि नहीं? एंड द इनर मेडुला's osmotic strength is 900 to 1200. 1200 is the max. तो ये किडनी ऐसा ऑर्गन है जिसके बाहर में ऊपरी सतह पर कॉर्टिकल रीजन में कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी कुछ है, और इनर पार्ट में ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा है, करीब 4 गुना, 300 से 4 गुना। इसीलिए हमारा ब्लड, सॉरी यूरिन, ब्लड से 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वेस्टफुल सब्सटेंसेज। इसी वजह से तो यह प्राइम इंपॉर्टेंस है, बहुत ही जरूरी है कि किडनी के अंदर उसके मेडुला रीजन में यह इस प्रकार का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन्ड हो। ठीक है, 300 टू 1200, ये बहुत ही जरूरी है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेडुला इंटरस्टिशियम is very necessary, and this concentration gradient is maintained by two compounds. One is salt of 2 ions, sodium chloride. Another is the compound, covalent compound. This is ionic compound, this is covalent compound. It is urea. इन दोनों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन्ड होता है। यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों जरूरी है, यह अभी आप आगे समझ जाए क्यों जरूरी है। ठीक है, पहले अभी आप ये समझो कि यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, बिना इसके नहीं होगा यूरिन कंसंट्रेट। ओके, तो यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज वेरी क्रूशियल, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट इन द मेडुला इंटरस्टिशियम। अभी गॉट दिस पॉइंट, आगे चले। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने का जो जिम्मेदार है, जिसकी बात को जो ये हो कैसे रहा है, एक ऑर्गन में आप समझ लो कि ऊपर उस ऑर्गन के ऊपर में
कॉर्टिकल रीजन में कम नमकीन है, और जैसे जैसे हम भीतर जाते जा रहे हैं वो नमकीन, उसका सॉल्टीनेस बढ़ते जा रहा है, इनर मेडुला में जाके मैक्सिमम हो गया 12। तो यह जो ग्रेडियंट है, यह ग्रेडियंट मेंटेन होता है, उसके लिए एक अलग अलग से प्रोसेस जिम्मेदार है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोसेस है काउंटर करेंट एक्सचेंज। ओके, काउंटर करेंट एक्सचेंज का मतलब है कि दो तरफ से धाराएं अपोजिट, विपरीत दिशाओं में बह रही। ट्यूब्यूल में जो डायरेक्शन है फिल्ट्रेट का, वह अपोजिट है उस डायरेक्शन के जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है इन द भाषा रेक्टा, जो कि जक्स्टापोज्ड है उस लोकेशन पर, ट्यूब्यूल के उस रीजन के पास। दोनों ट्यूब में, तो ट्यूब्यूल में और ब्लड वेसल में धाराएं जो है बहने की, फ्लो की, वह विपरीत है, काउंटर करेंट। साथ ही साथ भाषा रेक्टा में भी भाषा रेक्टा का भी असेंडिंग आर्म डिसेंडिंग आर्म हो गया, हेनरीज लूप का भी असेंडिंग आर्म डिसेंडिंग आर्म हो गया। आप फिगर निकालिए बुक, कौन सा फिगर, हेनरीज लूप का, ये वाला फिगर सी। सॉरी, मेरे पास भी होगा बुक। दिख रहा है? इज इट विजिबल? हाँ, फोकस ही है। तभी समझोगे आप काउंटर करेंट। सी, व्हाट यू आर सीइंग हियर इज ट्यूब्यूल का असेंडिंग आर्म डिसेंडिंग आर्म। अभी ध्यान दीजिए ब्लड के फ्लो पर। दिस इज अफरेंट आर्टेरियोल। हम एरो बनाते जा रहे हैं, अफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड आया। आप ध्यान दीजिए यहाँ अफरेंट आर्टेरियोल जो है इफरेंट से मोटा है कि नहीं? मोटा है ना? तो आप कभी पानी वानी पटाए हो गमला में पेड़ पौधों को, तो पीछोगे तो फोर्स बढ़ेगा। यहाँ डायमीटर ज्यादा है और यहाँ डायमीटर कम है, तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा होगा। तो लोकली यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर का जो प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर, ठीक है। अब हम उस पर बाद में आएंगे। और उसी प्रेशर की वजह से वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, और उस प्रेशर को मॉड्यूलेट भी किया जा सकता है ऊपर नीचे, टू मेंटेन ए हेल्दी जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। और जीएफआर कम ज्यादा किया जा सकता है किसकी मदद से? ब्लड प्रेशर तो है ही ड्राइविंग फैक्टर, ठीक है। अब उसको आदमी बीमार पड़ गया, या पानी कम पी रहा है, या रेगिस्तान में भटक गया, या कहीं बर्फीला तूफान में फंस गया, डिफरेंट तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है ना। और उस क्लाइमेटिक कंडीशन में उसके शरीर की पानी की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न प्रकार की है, तो ये जीएफआर मॉड्यूलेट होगा। इसको मॉड्यूलेट कराए थे आप, एक स्पेशल रीजन है जक्स्टा, जक्स्टा भूल गई नाम,
जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA बताए थे। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, और जब कंट्रोल बताएंगे वहां फिर से इसको हम बताएंगे। JGA, JGA क्या कर रहा था? JGA जक्स्टा उस रीजन को कहते हैं जहां पर रीनल कॉर्पसल जो है वह इंटरेक्ट किया हुआ, रीनल कॉर्पसल का एफरेंट आर्टेरियोल इज इंटरेक्टेड विथ DCT। ये DCT के साथ इंटरेक्ट किया, DCT यहाँ पर है, ये पोजीशन ये एफरेंट आर्टेरियोल DCT के पास होगा, बहुत सारे न्यूरॉन्स में, नेफ्रॉन्स में। और जहां पर ये DCT के पास होगा उस स्पेशल रीजन में, वहां पर जो सेल्स हैं वो JG सेल्स कहलाते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। And those cells, upon the activation, when filtration rate is less, these cells produces the enzyme renin. Renin activates the angiotensin. Then angiotensin increases the filtration rate. Angiotensin से ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है एंजियोटेंसिन फिल्ट्रेशन में। तो ये तो अलग मैकेनिज्म हो गया। हम यहाँ पर ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं। आप देखिए ब्लड फ्लो, एफरेंट आर्टेरियोल मोटा है, इफरेंट पतला है, ब्लड ज्यादा है, यहां से निकल के फ्लो कर रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ गया, ये दो भाग में बट गया, इधर गया, फिर ये घूम करके यहाँ जाएगा, और इधर से ब्लड घूम करके यहाँ आया, और फिर ये पीछे से घूम करके यहाँ गया। बेसिकली क्या हो रहा है, इन पैरेलल आर्म्स में से ब्लड फ्लो हो रहा है। समझ लो कि ये कोई पाइप है, इधर से हम पानी डालें और ऐसे कनेक्शन है, तो पानी किस दिशा में प्रवाहित होगा? नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, यही ना होगा, जो जिस प्रकार का यहाँ अरेंजमेंट ट्यूब का। इमेजिन करो, ब्लड इसमें से घुसेगा तो नीचे जाएगा, कुछ इधर गया, कुछ नीचे गया, और फिर फाइनली ऊपर चढ़ा। तो यह हो गया आपका डिसेंडिंग आर्म ऑफ भाषा रेक्टा, एंड डिसेंडिंग ऑफ arm of vasa recta is resting upon the ascending arm of the Henle's loop। ये देखिए उल्टा है कि नहीं? ascending arm of the vasa recta is over the descending arm of Henle's loop। यस कि नो? ये हेनली लूप का ascending आर्म है, ये वाला जहां पर मेरा पॉइंटर है अभी, यह ascending आर्म इंटरेक्ट किए हुए है डिसेंडिंग आर्म ऑफ भाषा रेक्टा, इसको कहते हैं। यहां से लेके यहाँ के नीचे का पूरा ब्लड वेसल्स भाषा रेक्टा है। And these blood vessels are called as peritubular capillaries other than vasa recta। एक नेफ्रॉन में कल ही बताए हैं आपको कितने तरह के कैपिलरीज हो गए, अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, इफ तो हो गया, इफरेंट आर्टेरियोल इज देन बिकमिंग द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। कहां पर? PCT में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हो गया। एंड दिस peritubular, a branch of peritubular capillary, and this peritubular capillaries are becoming vasa recta in the Henle's loop। The Henle's loop, vasa recta is a special type of peritubular capillary। Okay, and afferent, efferent, peritubular capillaries and vasa recta, चार तरह के ब्लड वेसल्स। तो आप देख रहे हैं कि भाषा रेक्टा में जो ब्लड का फ्लो है वह अपोजिट है इन डायरेक्शन टू देयर टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग arm of the Henle's loop where it is present। भाषा रेक्टा का डिसेंडिंग आर्म ascending arm of the Henle's loop के ऊपर है, भाषा रेक्टा का ascending arm डिसेंडिंग आर्म ऑफ Henle's loop के ऊपर है। तो डिसेंडिंग आर्म में ब्लड का फ्लो टुवार्ड्स द ग्रेविटी है,
और डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनलीज लूप के ऊपर असेंडिंग आर्म ऑफ द वासा रेक्टा है, तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो हियर यू सी द काउंटर करेंट, काउंटर मतलब विपरीत दिशा में ब्लड का फ्लो और फिल्ट्रेट का फ्लो हो रहा है। फिल्ट्रेट का फ्लो तो इस प्रकार से है, बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डिसेंडिंग आर्म, देन असेंडिंग आर्म। ब्लड का फ्लो है कैसे, ब्लड कैसे आया, डिसेंडिंग आर्म में पहले आया और असेंडिंग आर्म, डिसेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा में आया और असेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा में गया। समझे बोले, ये वेन्यूल हो गया। दिस विल unite the renal vein. Okay, renal vein will unite the inferior vena cava. एफरेंट आर्टरियोल आया रीनल आर्टरी से, ये गया रीनल वेन में। कौन, यह वासा रेक्टा का एग्जिट। यहां पर ब्लड पहुंचते पहुंचते डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। इस पूरे रास्ते में गैसियस एक्सचेंज भी तो हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा है, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स का भी एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तो क्या आप यहां नोट किए कि फिल्ट्रेट का फ्लो इस हेनलीज लूप में डिसेंडिंग आर्म देन असेंडिंग आर्म, ब्लड का फ्लो डिसेंडिंग आर्म में आया फिर असेंडिंग आर्म में वासा रहता है। लेकिन यह दोनों एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से हैं जिसकी वजह से काउंटर करंट है कि डिसेंडिंग आर्म ऑफ द वासा रेक्टा इज एबव द ascending arm of Henle's loop. Ascending arm of vasa recta is above the descending arm of Henle's. Okay, have you got this? This is called as counter current mechanism, and because of this mechanism, this gradient of NaCl and urea is maintained in the medular interstitium. वो जो ग्रेडियंट हम बता रहे हैं वो बहुत जरूरी है यूरिन के कंसंट्रेटेड होने के लिए। यूरिन के कंसंट्रेटेड होने के लिए ग्रेडियंट जरूरी था NaCl और यूरिया का रीनल मेडुला में। ओके, उस ग्रेडियंट के लिए जरूरी है यह काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए जरूरी है क्या, ट्यूब्यूल तो है ही, भाषा रेक्टा। भाषा रेक्टा में जो इस प्रकार का अरेंजमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फाइनली। ओके, नाउ come to this picture. Where you will understand this concentration of urine, how urine is getting concentrated because of this counter exchange flow. See what is written here in your book. The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite directions. एक लाइन में लिख दिया, अभी आपको हम समझा दिए कैसे है अपोजिट डायरेक्शंस में, and thus forms a counter current. The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in a counter current pattern. ना ही सिर्फ यह काउंटर करंट है फ्लो, कहाँ गया हेनलीज लूप, काउंटर करंट किसके साथ है, ट्यूब्यूल के साथ, रीनल ट्यूब्यूल के साथ। ना ही ये सिर्फ काउंटर करंट है रीनल ट्यूब्यूल के साथ, बल्कि यह आपस में भी काउंटर करंट। देखिए असेंडिंग आर्म में जो डायरेक्शन है ब्लड के फ्लो का, डिसेंडिंग आर्म में उसका उल्टा है। ये आपस में भी काउंटर करंट है ना।
भाषा रेक्टा के दोनों आर्म आपस में काउंटर करंट है, और भाषा रेक्टा के दोनों आर्म हेनलीज लूप के दोनों आर्म के साथ काउंटर करंट है। एक लाइन में लिख दिया यहाँ किताब में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ओके, what is written here in the next line? The proximity between the Henle's loop and the and vasa recta, as well as the counter current in them, help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. कितना बड़ा बात लिख दिया एक लाइन में। इसी को हम समझाए अभी आपको। इंटरस्टिशियल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कैसे ग्रेडियंट है सॉल्ट का, ऑस्मोलरिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, किसकी वजह से? NaCl और यूरिया की वजह से। तो कह रहा है कि प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीकी, बिटवीन द हेनलीज लूप एंड द वासा रेक्टा। अब इस रीजन में हेनलीज लूप और वासा रेक्टा दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब है, नजदीक है, ठीक है। वासा रेक्टा से, अब आप आगे देखोगे, वासा रेक्टा से जो निकल रहा है वो हेनलीज लूप में घुस रहा है, हेनलीज लूप से जो निकल रहा है वो वासा रेक्टा में घुस रहा है। बीच में तीसरा एक और चीज है, क्योंकि जो सब चीज का आदान प्रदान जो हो रहा है वो तीन चीजों के बीच में हो रहा है, ट्यूब्यूल, ब्लड वेसल्स एंड द टिश्यूज प्रेजेंट बिटवीन द नेफ्रॉन्स। भले वो टिश्यू कॉर्टेक्स के रीजन में हो या मेडुला के रीजन में हो, नेफ्रॉन के बीच का टिश्यू, जिसे हम अभी यहाँ मेडुला रीजन में कह रहे हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो जहां पर ब्लड वेसल एकदम नजदीक में जक्स्टापोज्ड नहीं है ट्यूब्यूल के, वहां पर ट्यूब्यूल से निकल करके वह इंटरस्टिशियम में जा रहा है, वह मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जहां पर एकदम नजदीक है प्रॉक्सिमिटी में, वहां पर ट्यूब्यूल से जो निकल रहा है वो वासा रेक्टा में घुस रहा है, वासा रेक्टा से जो निकल रहा है वो ट्यूब्यूल में घुस रहा है डायरेक्ट, बीच में मीडिएटर नहीं है। लेकिन जहां पर ट्यूब्यूल के उस रीजन में जहां पर ब्लड वेसल और ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियम है, वहां पर बीच जब आदान प्रदान हो रहा है ब्लड और फिल्ट्रेट के बीच में सब्सटेंसेस का, तो वह इंटरस्टिशियम के थ्रू हो रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखोगे। लिखा हुआ है आपके लाइन एक चीज, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा, इनके बीच में जो नजदीकी है और साथ ही साथ जो काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है इनके बीच में, इसकी वजह से मेंटेन हो रहा है एक इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवार्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। दो फैक्टर है, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ वासा रेक्टा विद द हेनलीज लूप प्लस द सेकेंड थिंग इज काउंटर करंट। Both of these things are maintaining the increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium। जैसे जैसे अंदर की तरफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ जा रहे हैं, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो रही है। इतना समझ रहे हैं? कुछ क्वेश्चन है अभी तक? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? सो एज, ठीक है, that is from 300 milliosmol per liter in the cortex to about 1200 milliosmol per liter in the inner medullary interstitium। हाँ, उसी वजह से हो रहा है, तेजी से हो रहा है। कोई फ्लूइड और दूसरा फ्लूइड पास हो रहा है और दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? कोई स्थिर फ्लूइड है, दो स्थिर फ्लूइड,
और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी दोनों का भिन्न भिन्न है। तो एक टाइम आएगा जब दोनों का ऑस्मोलैरिटी समान हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगी, क्योंकि तो पानी अस्थिर है। लेकिन जब फ्लो कर रहा है तब नहीं आएगा इक्विलिब्रियम। यह प्रक्रिया सतत चलती रहेगी अनवरत, उसका फायदा है ये। इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, हमेशा यूरिन फॉर्मेशन होते रह रहा है 24 घंटा। कभी यह फिल्ट्रेशन रुक नहीं रहा है, क्योंकि आगे की प्रक्रिया चल रही है जो कि कंसंट्रेशन है, और उसका एक्सक्रीशन भी हो रहा है कंसंट्रेटेड फॉर्म का। तो आगे से फ्लो बना हुआ है, इसलिए पीछे का भी प्रोसेस, जब आगे से फ्लो बना हुआ रहेगा तो पीछे से भी एडिशन होने में दिक्कत नहीं होगी। आगे मार्ग नदी है, आगे पानी रोक दिए तो पीछे जमा हो जाएगा। यस कि नो? समझे बात को? तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। एक ग्रेडियंट मेंटेन्ड है, और उसी ग्रेडियंट, अभी आप समझोगे कैसे, आगे हम बताएंगे यही चीज। बहुत कम यूरिन वॉल्यूम के केस में कह रहे हो? किसका? बे जो बच्चा होता है। अच्छा, हाँ। हम्म। पानी का कमी, कलेक्टिंग ट्यूब में बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ओके। वाट अगर शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, पानी की जरूरत होगी शरीर को, क्योंकि ये सब प्लस माइनस है, बैलेंस। कितना आपका वाटर इनटेक है, पानी पिए। और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में भी आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वाटर बनता है, एक वहां से वाटर ऐड हो गया। ओके। इसीलिए सुंडा और छिपकली को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, और रेस्पिरेशन से जो वाटर होता है, उसी से अपना काम चला लेता है। और भी अडेप्टेशन है उसके। तो अब ह्यूमन के केस में अगर यूरिन कम निकल रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम कह रहे हो, और वो कंसंट्रेटेड होगा, फिर येलोइश होगा, है, वॉल्यूम कम निकल रहा है, दैट मीन्स योर बॉडी नीड्स वाटर। है, इसीलिए कहा जाता है पानी खूब पीजिए, खासकर गर्मी के दिन में, क्योंकि इसमें स्वेटिंग हो रहा है, पसीना निकल रहा है, बोल भी रहे हो, उससे भाप निकल रहा है। वाटर लॉस गर्मी के दिन में ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू विंटर डेज। तो अगर यूरिन कंसंट्रेटेड है, दैट मीन्स ही नीड्स मोर वाटर, का और कोई मतलब नहीं। क्योंकि बच्चा है, बूढ़ा होता तो अलग मतलब भी निकाल सकता, जवान होता तो अलग मतलब, किडनी में कुछ गड़बड़ी हो सकती। ओके। फिल्ट्रेशन रेट गड़बड़ हो सकता है, लेकिन न्यूली बॉर्न बेबी है या अभी यंग एज में है तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है। तो एनी मोर क्वेश्चन, कुछ पूछना है? चले आगे। ये पिक्चर निकाल लीजिए अपने बुक में। काउंटर करेंट एक्सचेंज क्या होता है? अच्छा, बुक में एक सेकेंड, पहले इसको, बुक में क्या लिखा है, 2-3 लाइन वो देख लेते हैं, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। क्या लिखा हुआ है देखिए।
द ग्रेडियंट इज मेनली काउज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये भी बता चुके हैं हम आपको, NaCl और यूरिया की वजह से यह ग्रेडियंट मेंटेन। कार्ब भले दूसरा रहा है, लेकिन वो जो कंसंट्रेशन, जो एजेंट है, जो सॉल्ट है, कंपाउंड है, वो यही दोनों। NaCl is transported by the ascending limb of the Henle's loop। चलो अब ये यहां से हम फिगर पर आए। अब इसको आप समझिए, काउंटर करंट एक्सचेंज। सी दिस इज डायग्राम। अगर एग्जाम में आया तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप वाइज पॉइंट वाइज लिखते जाओगे। ये फिगर लेकिन जरूर बनाओगे। क्या लिखा हुआ है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेफ्रॉन एंड भाषा रेक्टा शोइंग काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, इतना तो आप समझ ही चुके हो। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों आवश्यक है? हाँ, इतना 10 बार बताया है। काउंटर करंट मैकेनिज्म आवश्यक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो रीनल मेडुला में है, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी एज यू गो टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस। टू मेंटेन दैट दिस काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म इज नेसेसरी। वो क्यों जरूरी था? ग्रेडियंट इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी क्यों जरूरी था? यूरिन के कंसंट्रेट होने के लिए। ओके, ठीक है। अब इसको आप समझोगे तो लिंक आपको मिल जाएगा, जहां भी अभी आपका लिंक मिसिंग है। और ये काउंटर करंट एक्सचेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि एक स्पेशल अरेंजमेंट है ब्लड कैपिलरीज का, जिसको भाषा रेक्टा कहते हैं, उसका हेनलीज लूप के अराउंड। ओके, स्पेशल स्ट्रक्चर भी है और डिफरेंट डिफरेंट रीजन पर स्पेशल परमिएबल प्रॉपर्टीज है उसके, भिन्न भिन्न अलग अलग रीजन। सी दिस पोर्शन इज the left hand side is of this figure is showing you the flow of blood in the vasa recta. The right hand side is the flow of filtrate in the lumen of the tubule. पिक्चर को समझिए। यहां पर जो एरो है लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड है ना, यस दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो दिस इन द राइट हैंड साइड दिस ट्यूब्यूल, इधर से हम भी देखते हैं, in this tubule this arrow is indicating the flow of what? Filtrate। तो यहाँ कलेक्ट हुआ। at this left hand side it is vasa recta, the portion of vasa recta in which the flow of blood is shown। as you know that ascending arm of vasa recta is juxtaposed with the descending arm of Henle's loop। फिल्ट्रेट वाले हेनलीज लूप के डिसेंडिंग आर्म में आया। पीसीटी के बाद, पीसीटी के बाद कहाँ आया? डिसेंडिंग आर्म में फिल्ट्रेट। और ये डिसेंडिंग आर्म ऑफ द फिल्ट्रेट के ऊपर क्या है? एसेंड, या इसके बगल में सटा हुआ, इसके प्रॉक्सिमिटी में कौन सा है? एसेंडिंग आर्म ऑफ भाषा रेखा, यानी ये एसेंडिंग आर्म होगी। ब्लड यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको असेंडिंग आर्म कह रहे हैं। यहाँ इसमें ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए डिसेंडिंग आर्म कह रहे हैं। उसी तरह फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, अब इसमें किसको असेंडिंग कहेंगे, किसको डिसेंडिंग कहेंगे? असेंडिंग उसको कहेंगे जिसमें बहने वाला पदार्थ जो है, चाहे इसमें चाहे इसमें, वो नीचे की तरफ जा रहा है, जिसमें डिसेंडिंग आर्म। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग आर्म के से सटा हुआ भाषा रेखा का असेंडिंग आर्म है, इधर जा रहा है, पैरेलल काउंटर फ्लो है दोनों में।
ब्लड और फिल्ट्रेट का काउंटर करंट है, समझ आ रहा है क्या? अब देखो, फर्स्ट फोकस व्हाट इज हैपनिंग, the osmolar strength of this filtrate is 300. Okay, अब ये 300 ब्लड का ऑस्मोलर स्ट्रेंथ है, लेस देन 300। ब्लड से आया फिल्ट्रेट गवर्नमेंट कैप्सूल, वो भी 300 के आसपास। इससे न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब हुआ, वाटर भी एब्जॉर्ब हुआ, दोनों एब्जॉर्ब। न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्ब होने से ऑस्मोलर स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? पानी से डिजॉल्व सब्सटेंस हम निकालेंगे तो ऑस्मोलर स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, घटेगा ना। और पानी हम ऐड करेंगे किसी सॉल्यूशन में तो भी घटेगा, पानी निकालेंगे तो बढ़ेगा, सॉल्ट भी निकालेंगे तो घटेगा, सॉल्ट ऐड करेंगे तो बढ़ेगा। सॉल्ट के ऐड होने से बढ़ रहा है, सॉल्ट के निकलने से घट रहा है, पानी के ऐड होने से घट रहा है, पानी के निकलने से बढ़ रहा है ऑस्मोलर स्ट्रेंथ। उसी कंसेप्ट को रखते यहाँ पर चल 300। तो इस पीसीटी में क्या हुआ था, पानी निकला भी था और न्यूट्रिएंट भी निकला था। तो पानी के निकलने से ऑस्मोलर स्ट्रेंथ बढ़ा और न्यूट्रिएंट और सॉल्ट के निकलने से ऑस्मोलर स्ट्रेंथ बढ़ा, प्लस माइनस हो करके वो 300 के ही लगभग रहते। फिल्ट्रेट का ऑस्मोलर स्ट्रेंथ आफ्टर पासिंग थ्रू द पीसीटी। पीसीटी में दोनों काम हुआ ना, बढ़ा भी और घटा भी ऑस्मोलर स्ट्रेंथ। तो प्लस माइनस होकर के वो उतना के उतना ही, थोड़ा सा बस डिफरेंस है पूरा। तो 301 वैल्यू को लेके चलिए। रीनल कॉर्टेक्स का ऑस्मोलर स्ट्रेंथ 300 होता है। इसके बगल में जो टिश्यूज है उसका भी ऑस्मोलर टिश्यू जिस फ्लूइड में सोक्ड है उसका ऑस्मोलर स्ट्रेंथ भी 300। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। पीसीटी से पास करने के बाद ना सॉल्ट का एक्सचेंज होगा ना वाटर का एक्सचेंज होगा इन द रीनल कॉर्टेक्स। पीसीटी से पास करने के बाद रीनल कॉर्टेक्स और इसका दोनों का ऑस्मोलर स्ट्रेंथ बराबर है। अब फिल्ट्रेट पास किया आगे, जैसे जैसे आगे यह पास किया, यह घुस गया अब मेडुला रीजन। याद कीजिए, हेनलीज लूप इज प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। दो तरह के न्यूरॉन नेफ्रॉन्स थे, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा मेडुलरी का हेनलीज लूप बहुत लंबा है, डीप में गया हुआ है। तो आप समझ लीजिए जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का कितना अहम रोल होगा यूरिन के फॉर्मेशन। ओके, this filtrate has moved ahead. As it moves ahead in the vestibule, it enters in the Henley's loop, descending arm of the Henley's loop. Okay, and this descending arm of Henley's loop is proceeding in the direction of increasing osmolarity as it goes deeper inside the medullary interstitium. जैसे जैसे यह मेडुलरी इंटरस्टिशियल की तरफ जाते जाएगा, इसके बगल अगल बगल में, इस पर भी ध्यान मत दो, 608 अगल बगल वाले टिश्यूज का ऑस्मोलर स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है और उसी से मैच करके, उसी से इक्विलिब्रियम होकर इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलर स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एज वी गो डीपर, और उसी के इक्विलिब्रियम में हेनलीज लूप के उस कोरस्पॉन्डिंग रीजन का, जो उस रीजन में मेडुला के रीजन में मौजूद है,
उसी के बराबर उसका फिर ऑस्मोलर स्ट्रेंथ हो रहा है। यानी जैसे 400 अगर अंदर का है फिल्ट्रेट का ऑस्मोलर स्ट्रेंथ, तो यहाँ भी 400 का होगा या उससे थोड़ा ज्यादा, लगभग आसपास। यहाँ 600 है तो इसके बगल अगर भी 600 का होगा या उससे ज्यादा हो। ओके, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। So as it is going, what you are seeing here in the descending arm, this descending arm is allowing the absorption of water. You see, water is getting absorbed here in the descending arm of Henle's loop. Okay? यह वाटर चला जाएगा कहां पर, इसके ऊपर है असेंडिंग आर्म ऑफ हेनलीज, असेंडिंग आर्म ऑफ भासा रेक्टा। तो यहां से पानी निकल के तो इंटरस्टिशियम में भी जा सकता है, जाता है, और इससे सटा हुआ है भासा रेक्टा, इसमें चला जाता है वाटर। ठीक है, वाटर जाने के बाद तो वाटर निकलने, और ये वाटर निकलने का कारण क्या है, ये वाटर क्यों निकला हेनलीज लूप से। हम किसी को घर से जाने के लिए अलाउ किए हुए हैं और उसको हम पकड़ के रख ले तो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। किसी को हम बांध के रस्सी से रख ले तो मन तो करेगा बाहर भागने का, लेकिन जा नहीं पाएगा। यहाँ पर जो सेल्स हैं हेनलीज लूप के, वो अलाउ तो किए हुए हैं वाटर को जाने के लिए, लेकिन वाटर कब जाएगा, जब कंडीशन बनेगा इस वाटर के बाहर निकलने का, तभी जाएगा ना। इनके ऑस्मोलर स्ट्रेंथ में बदलाव आएगा, डिफरेंस आएगा, तभी वाटर जाएगा। तो जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे हैं, पानी कम है, नमक ज्यादा है मेडुला में, और उसकी वजह से जब ये ट्यूब्यूल आगे जा रहा है तो उस इंटरस्टिशियम ऑस्मोलरिटी को मैच करने के लिए वाटर निकल जाएगा फिल्ट्रेट से। वाटर फिल्ट्रेट से निकलेगा तो फिल्ट्रेट का भी ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इस ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए वाटर विल कम आउट ऑफ द फिल्ट्रेट। वाटर निकलने की वजह से क्या आप अभी बताए थे, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ऑस्मोटिक। ये वाटर क्यों निकला, ये वाटर क्यों निकला, दो वजह है। एक तो हेनलीज लूप का सेल अलाउ किए हुए, और दूसरा वहां पर इंटरस्टिशियम जो है, मेडुला इंटरस्टिशियम, उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एज यू गो डीपर द ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ, ऑस्मोलरिटी इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा फिल्ट्रेट, इसको एक एनवायरमेंट, एक इंक्रीजिंग ऑस्मोलर ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ का एनवायरमेंट आगे मिलते जाएगा। उस एनवायरमेंट से इक्विलिब्रियम करने के चक्कर में इससे वाटर निकलते जाएगा। हमेशा कोशिश करेगा, क्योंकि अलाउ किए हुए वाटर का निकलना, इसलिए इक्विलिब्रियम में आने का कोशिश करेगा वो, तो पानी बाहर निकलेगा। ओके, क्या हुआ, फिल्ट्रेट अभी गाढ़ा हुआ, ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ फिल्ट्रेट का बढ़ गया। यह वाटर निकल के, चूंकि यह है इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द असेंडिंग आर्म ऑफ द वासा रेक्टा, दिस वाटर विल एंटर द वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो अपोजिट है, वासा रेक्टा में वाटर ऐड हो करके, अब आप क्या देख रहे हैं, ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग। दिस वाटर this water has come in the interstitium, plus this water can go here in the vasa recta। तो ये इसके ऊपर है ना, सटा हुआ है, कि पानी इसमें चला गया, और पानी जाने से क्या होगा, वासा रेक्टा का ऑस्मोलरिटी जो ब्लड है उसका घटेगा। तो जैसे जैसे ब्लड आगे बढ़ते जा रहा है, देखो ऑस्मोलरिटी घटते जा रही है। पानी इधर से निकलते गया डिसेंडिंग आर्म ऑफ द हेनलीज लूप से, और पानी ऐड होते गया ascending arm of the vasa recta, as a result of which
द ब्लड ऑस्मोलैरिटी इज डिक्रीजिंग। सो वासा रेक्टा ही एक ऐसा ब्लड वेसल है बॉडी में, याद रखो, क्वेश्चन पूछ लेगा कहीं मत, बहुत कंसेप्चुअल। इफ इट इज आस्क्ड which blood vessel in your body is having the having a big difference in the osmolar strength, 300 से 1200 के बीच में, इसीलिए 300 और 1200 के बीच में इतना अंतर है इस ब्लड वेसल में ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ का। और बाकी जगह जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा है और भी बॉडी में कहीं भी, सब जगह सेम है ऑस्मोलर स्ट्रेंथ मोर और लेस, बट हियर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द सेम ब्लड वेसल। और ये डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा डिस्टेंस है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है ये। इतना सा छोटा किडनी में 10 लाख पैक है ये, बहुत छोटे ही डिस्टेंस में इतना ज्यादा ऑस्मोलर डिफरेंस है ब्लड वेसल, एक ही ब्लड वेसल के अंदर ब्लड। ओके, अब देखिए तो आप एक तरीके से और समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर टेस्ट करो, कोई मांसाहारी जीव हो तो किडनी खाएगा, मान लो यहाँ से एक चम्मच खाया, उसको कम नमकीन लगेगा, यहाँ से अगर ईट करेगा ज्यादा नमकीन लगेगा, है ना। आप देख लीजिए कैसे ज्यादा नमकीन हुआ, कम नमकीन। Can you see here more amount of NaCl can be taken out from the vasa recta in this region because here the concern osmolar strength is more. इतना ज्यादा osmolar strength हुआ है, that is because of NaCl। तो यहाँ पर NaCl बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा in the deeper inner in medullary interstitium, नमक ज्यादा। यहाँ पर आउटर मेडुला में कितना है, 400 है, तो कम मात्रा में नमक निकला टू मैच यहाँ पर इक्विलिब्रियम होने के लिए, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होने के लिए ज्यादा नमक निकला। ओके, अब उसी देखिए आपके इसी रीजन में, यानी जो डिसेंडिंग आर्म है वहां पर पानी कम निकल रहा है ना? तो यहाँ पर नमकीन ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर पानी निकला नहीं निकला, यहाँ नमकीन ज्यादा हो गया। और यहाँ पर देखिए NaCl निकल भी रहा है और NaCl एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो कम नमकीन हो गया और पानी भी आ रहा है ना, पानी ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर कम नमकीन हुआ, यहाँ ज्यादा नमकीन हो गया। वासा रेक्टा को देख करके भी आप समझ सकते हैं, और इसको देख के भी आप समझ सकते हैं, देखो कितना नमक है ऐड हो रहा है। अब बहुत सारा NaCl लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकल रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा नमकीन हो गया। अब आप देखिए अब यहाँ से चला, H2O हो गया, गाढ़ा हो गया, फिल्ट्रेट, डिसेंडिंग आर्म ऑफ एनलिस लूप, और आउटर मेडुला क्रॉस करते करते इसका हो गया 600 ऑस्मोलर स्ट्रेंथ। जब इनर मेडुला में ये एंटर किया 600 से 1200 तक इसका ऑस्मोलर स्ट्रेंथ किसका, फिल्ट्रेट का इंक्रीज होगा, इस यानी दुगना गाढ़ा हो जाएगा इतना से इतना के बीच में। और इस दुगना गाढ़ा होने में कौन रेस्पॉन्सिबल है, पानी निकल जाएगा आधा इसका। 1 लीटर नमकीन पानी का घोल हो अगर, उसको हम कहें कि इसको दुगना गाढ़ा कर दो जितना गाढ़ा भी है, तो आप क्या करोगे, उस 1 लीटर घोल से आधा लीटर पानी निकाल लो इवेपोरेट करके, तो वो दुगना गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दुगना गाढ़ा हुआ तो फिल्ट्रेट का वॉल्यूम आधा निकल गया। मान लो 2 लीटर था तो 1 लीटर हो गया, 1 लीटर पानी यहाँ, सोच लीजिए कितना अहम रोल है डिसेंडिंग आर्म ऑफ द हेनलीज लूप का। 1 लीटर आधा पानी यहाँ चुसा गया, रीअब्जॉर्ब हो गया इस वजह से।
किस वजह से? किस वजह से? बिकॉज ऑफ द concentration gradient present in the medullary interstitium, इस वजह से। और ये कंसंट्रेशन की वजह क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलो, अब यहां से क्रॉस किया 1200, अब बढ़ना शुरू हुआ। अब क्या हुआ? थोड़ा सा इसमें इंक्रीज हुआ, 1200 से फिर 600 आ गया असेंडिंग आर्म में। तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐड हुआ, या पानी ऐड हुआ या सॉल्ट निकला। तो काम में से एक काम हो सकता है, पानी ऐड होगा या सॉल्ट निकलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप बुक में देखो, आपके बुक में दिया हुआ है एनलिज लूप अपर आर्म, ओके, NaCl इज कमिंग आउट। ठीक, ठीक है, बुक में दिया हुआ है NaCl इज कमिंग आउट, हियर इट इज नॉट शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर आप लिखो NaCl निकला, सॉल्ट और पानी निकला, इससे गाढ़ा हो गया। अब इस गाढ़ा से फिर सॉल्ट निकाल दिए NaCl, तो फिर पतला हो गया 600, आधा हो गया। तो अब ये जो वॉल्यूम वही है, मान लो यहाँ पर 2 लीटर था फिल्ट्रेट, तो यहाँ 1 लीटर हो गया। आधा पानी निकाल के 2 लीटर में जितना सॉल्ट था या वेस्ट मटेरियल था वही 1 लीटर में भी है, वो नहीं घटा। पानी गाढ़ा हुआ, पानी निकाल दिया, ठीक है। अब इस 1 लीटर से वेस्ट मटेरियल उतना ही है, ये बफर सिस्टम का काम कर रहा है। NaCl कहीं घुस रहा है, कहीं से निकल रहा है, साइकिल ऑफ NaCl इज देयर। नाउ NaCl इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस फिल्ट्रेट, वॉल्यूम वही है 1 लीटर ही, यानी यहाँ से जो मुख्य काम क्या है इसका, मेन फंक्शन क्या है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल। यूरिया बला बला अमोनिया भी सब जो 10 गो कंपाउंड लिखवाया आपको, वो सब मटेरियल को बाहर निकालना में काम। आप देख रहे हैं उस सब का कहीं एक्सचेंज हो रहा है वेस्ट मटेरियल का? नहीं हो रहा है। इतना खेला क्यों है NaCl और ये सब का खेला क्यों किया गया है? ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और आयन का क्यों है? क्योंकि यूरिन से पानी निकालना है, ठीक करना है, कंसंट्रेट करना है, कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा यूरिया को डिजोल्व करके बाहर फेंकना है, क्योंकि हम लोग लैंड एनिमल्स, इसी के लिए इतना खेल है। तो इस 2 लीटर में ही उतना ही वेस्ट सब्सटेंस है जो इस 1 लीटर में है। अब 1 लीटर बढ़ करके इसी 1 लीटर वॉल्यूम का फिर आयनिक स्ट्रेंथ कम हो गया NaCl निकलने, यहाँ पर भी 1 लीटर ही है, लेकिन इस 1 लीटर का आयनिक स्ट्रेंथ ऑस्मोलर स्ट्रेंथ 600 है। ओके, लेकिन इस 1 लीटर में जितना वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उतना ही वेस्ट प्रोडक्ट इस 2 लीटर वाले में भी था, इस 1 लीटर वाले में भी था। यहाँ पर मान लो 5 लीटर मान लो है, तो उसमें भी था। एक ट्यूब में 5 लीटर नहीं है, मान लो कलेक्शन ऑफ ट्यूब्यूज का इतना ही यहाँ भी था, इतना ही यहाँ भी था, वेस्ट मटेरियल इतना ही यहाँ भी है वेस्ट मटेरियल। तो इसी रीजन में ये हो गया थिन सेक्शन, आप देख रहे हो यहाँ पर थिन है, असेंडिंग आर्म ऑफ द हैंडल, और यहाँ पर थिक है। तो थिन आर्म से थिन आर्म में यूरिया का सिक्रीशन होता है, यूरिया ऐड हुआ और NaCl रिमूव हुआ। यूरिया और NaCl स्मॉल, बहुत ज्यादा यूरिया ने, a small amount of urea is secreted here and this urea has come from here, ठीक है।
जो कलेक्टिव ट्यूब से एब्जॉर्ब हुआ यूरिया था वह आया मेडुला के इंटरस्टिशियम में। इस यूरिया के आने का मकसद था इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम के ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ को 1200 तक पहुंचा देना। यूरिया के ऐड होने से और बढ़ गया, 1200 तक पहुंचा के गया यूरिया। A small amount of urea is getting leaked from or leak getting absorbed from the collecting tube, and this urea is added to the medullary interstitium. From medullary interstitium, this urea is picked up and it enters the thin segment of ascending arm of this loop. तो यूरिया यहाँ से निकला, यहाँ पर फिर वापस में आ गया फिल्ट्रेट में। और मेजोरिटी ऑफ द यूरिया इसी फिल्ट्रेट में मौजूद है, उसका कुछ मात्रा बस आया मेडुला इस रास्ते। अब यूरिया थोड़ा सा आने से क्या होगा, यहाँ पर ऑस्मोलर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ देख रहे हो आप घट रहा है। तो इससे बहुत ज्यादा मात्रा में फिर NaCl निकाल देगा तो फिर उतना घट जाएगा। यही हो रहा है, थोड़ा सा यूरिया सिर्फ ऐड हुआ है। ये यूरिया जो ऐड हो रहा है वो सिर्फ किस वजह से ऐड हो रहा है, क्योंकि इंटरस्टिशियम में यूरिया, तो इसका भी साइड इधर से ऐड होते जाएगा, तो इंटरस्टिशियम में यूरिया बढ़ते चला जाएगा। तो ये इसका फ्लो यूरिया, ये छोटा सा फ्लो। मेजोरिटी ऑफ द यूरिया का डायरेक्ट फ्लो है फिल्ट्रेट। ओके, दिस यूरिया इज रिटर्न्ड हियर and upon the removal of sodium chloride the osmotic strength decreases filtrate का। और फिल्ट्रेट से फिर जब ये मेडुला से क्रॉस करके इनर मेडुला से आउटर मेडुला में जा रहा है, ठीक सेगमेंट में वहां से और ज्यादा NaCl निकल गया, तो 600 से घट के अब 300 से भी कम हो जा रहा है आपका 250 के लगभग ऑस्मोलर 300 लगभग। ये लाइन 300 बता रहा है, 300। छह सौ से 300 कहा हुआ, आउटर मेडुला रीजन, यानी यह फिर आधा पतला हो गया, पतला हो गया। लेकिन इस पतला होने में उससे वेस्ट मटेरियल्स नहीं घटे, वो है उतने ही, NaCl निकल के पतला हो। और अब ये चला गया DCT में। आप देखें कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितना वॉल्यूम घट गया अब इसका, फिल्ट्रेट बहुत ज्यादा घट गया, आधा तो यही घट गया। कहाँ पर, इनर मेडुला, हेनली लूप के इनर मेडुला सेक्शन में आधा घट गया, डिसेंडिंग आर्म से जब क्रॉस कर रहा था। यहाँ पर सेम है और यहाँ भी सेम है, 1 लीटर वाटर तो यही निकला। वाटर असेंडिंग आर्म से नहीं निकल रहा है, असेंडिंग आर्म से सिर्फ NaCl निकल रहा है, और डिसेंडिंग आर्म में NaCl घुस नहीं रहा है। ठीक है, कोई चीज घुस नहीं रहा है इसमें, सिर्फ निकल रहा है, वो भी वाटर। घर जाओगे तो उसको पिक्चर को दम सामने रख के आधा घंटा देखते रहना, बस सिर्फ देखते रहना, जब दिमाग लगा रहना, तब समझ और क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो गाढ़ा हुआ ये फिर यहाँ पतला हो गया। अब ये 200, अब ये चला गया DCT में, एंड इन DCT
selective reabsorption as well as the secretion is happening to maintain the pH. So in the DCT reabsorption NaCl का और हो रहा है, पानी का भी कुछ और हो रहा है यहाँ पर। ओके, और फाइनल जो है एडजस्टमेंट वह कलेक्टिंग ट्यूब में हो रहा है। दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब। इन द कलेक्टिंग ट्यूब इट इज कलेक्टिंग ट्यूब भी ट्रैवर्स्ड है किडनी में, कॉर्टिकल रीजन में भी है, मेडुला रीजन में भी कलेक्टिंग ट्यूब। जैसे हेनरीज लूप है ट्रैवर्स्ड, कॉर्टिकल रीजन में भी है, इनर मेडुला में भी है, आउटर मेडुला में भी। ये भी कॉर्टेक्स में है, आउटर मेडुला, इनर मेडुला। तो ये भी इसके सराउंडिंग मीडियम में भी इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोलैरिटी है एज यू गो डीपर। के साथ वही बात हो गया। तो जब कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट घुसा तो वहां पर जो सराउंडिंग मीडियम है वहां पर कम है ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, just collecting. As it goes in the medulla region, the osmolarity increases of the interstitium medulla. अब अगल बगल ऑस्मोलर स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ है और फिल्ट्रेट का कम है, तो फिल्ट्रेट से वाटर निकल करके चला जाएगा इंटरस्टिशियम में। अगर वाटर अलाउ किए हुए हैं इसका मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर वाटर अलाउ किए हुए हैं, वाटर का एग्जिट। ओके, वाटर का एग्जिट और एंट्री इज नॉट अलाउड हियर इन द असेंडिंग आर्म। वाटर का ओनली द एग्जिट इज अलाउड इन द डिसेंडिंग आर्म। हियर द कलेक्टिंग ट्यूब ओनली द एग्जिट ऑफ वाटर इज अलाउड। एग्जिट ऑफ वाटर कहाँ होगा? जहां पर फिल्ट्रेट के सराउंडिंग में ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ या ऑस्मोलर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जैसे जैसे ये और भीतर चलते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ सराउंडिंग टिश्यूज का, तो फिल्ट्रेट से वाटर निकल निकल के, देख रहे हैं, H2O, 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 water is getting eliminated from the filtrate. So here now the filtrate has become green. पूरा फाइनली वाटर रिमूव हो गया। तो इस वाटर के रिमूवल में इसका योगदान है। फाइनली तो वाटर पूरा रिमूव हो गया। अब ये जरूरत के हिसाब से वो एडिबल किस कंडीशन में है, उसके बॉडी में वाटर का की अवेलेबिलिटी क्या है, स्कार्सिटी है, नेसेसिटी है, एफिशिएंसी है, कमी है, क्या है, या ज्यादा है पानी, उस हिसाब से पानी यहाँ पर निकले। अब जैसे तुमने एग्जांपल दिया कम हो रहा है, तो यहाँ पर कम वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, सॉरी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है इसलिए कम बन रहा है। ज्यादा वाटर इसलिए एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि बॉडी में वाटर की कमी हो रही है। वाटर की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि एडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर इज नॉट मेंटेन्ड, इसलिए कमी हो रही है। गर्मी के दिन में एडिक्वेट इनटेक नहीं है, इसलिए बॉडी के टिश्यू को पानी चाहिए तो वो यहाँ से निकाल लेगा, यूरिन कम मात्रा में बनेगा। फाइनल जो यूरिन का वॉल्यूम है वो यहाँ से डिसाइड हो रहा है कलेक्टिंग ट्यूब के इस सेक्शन। कलेक्टिंग ट्यूब के इसी सेक्शन के इसी फंक्शन को, इस फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, वो होने देने के लिए यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। और यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के लिए काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म। काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म का एक और फायदा है, असेंडिंग आर्म में फिल्ट्रेट का वॉल्यूम आधा हो जाता है, सॉरी डिसेंडिंग आर्म। काउंटर एक्सचेंज से डिसेंडिंग आर्म में फिल्ट्रेट का वॉल्यूम आधा हो जाता है। लेकिन इस फिल्ट्रेट का वॉल्यूम आधा होने पर यहाँ फिर जो वाटर निकल रहा है, इसका कारण क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही तो कारण है इसका, इंटरस्टिशियल। यहाँ पर भी जो वाटर निकल रहा है इसका वजह भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही। ओके,
Now you can understand this also. ब्लड इज, अब यहाँ से जो वाटर कलेक्टिव ट्यूब से जो वाटर निकल रहा है ये किडनी में घुस रहा है, के टिश्यूज में जा रहा है। यहाँ से NaCl जो निकल रहा है असेंडिंग आर्म से, दिस असेंडिंग आर्म इज इन प्रॉक्सिमिटी विद द डिसेंडिंग आर्म ऑफ द भाषा रेक्टा। तो दिस NaCl इज गेटिंग इप्लाइड हियर, सारा NaCl जो है यहाँ आ गया, भाषा रेक्टा में चला गया, जो डिसेंडिंग आर्म से निकला था, डिसेंडिंग आर्म ऑफ, सॉरी असेंडिंग आर्म ऑफ द हैंडलिज लूप से जो NaCl निकल के यहाँ पर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी घटी थी, वह NaCl जो है कुछ चला गया आपका किडनी के टिश्यूज में और कुछ एंटर हो गया है भाषा रेक्टा के डिसेंडिंग आर्म में, तो ये वापस आ गया। और यही डिसेंडिंग आर्म से यह NaCl वापस निकल जाएगा असेंडिंग आर्म ऑफ द भाषा रेक्टा में, NaCl निकल गया to make the osmolarity again to the level of 300. NaCl ऐड होकर के 600 से 300 हो गया osmolar strength of the descending arm of the vasa recta। NaCl के ऐड होने से ना 600 से 300 हो गया। सॉरी, देखिए ब्लड फ्लो इधर है, या NaCl ऐड हुआ तो 300 से 600 हो गया। इस NaCl जो NaCl थिक सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग आर्म ऑफ वेंडिज लूप से निकला, वो NaCl ऐड हुआ भाषा रेक्टा के डिसेंडिंग आर्म में, तो 300 से 600 हो गया। तो इसमें इधर है ना, दूसरी तरफ है ना। अब यही NaCl फिर निकल जाएगा असेंडिंग आर्म ऑफ द भाषा रेक्टा से, तो इट विल द ऑस्मोलरिटी विल अगेन कम बैक टू 300। तो NaCl की एंट्री और NaCl का एग्जिट यह मेंटेन कर रहा है भाषा रेक्टा के अंदर ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट, ब्लड के ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है NaCl का एग्जिट और एंट्री भाषा रेक्टा में, साथ ही साथ वाटर का एग्जिट फ्रॉम द डिसेंडिंग आर्म ऑफ भाषा रेक्टा। वाटर, exit of water from the descending arm of the vasa recta is increasing the osmolar strength of the blood, as well as addition of NaCl in the descending arm of vasa recta is also contributing towards this increased osmolarity of the blood। NaCl के ऐड होने से ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी और पानी के निकलने से भी ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी, तो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे फैक्टर से, यह ग्रेडियंट यहाँ पर मेंटेन होगा। अब देखिए पानी निकल रहा है मेडुला के आउटर रीजन, तो यहाँ पर पानी की बहुतायत थोड़ी सी ज्यादा मात्रा हुई इन द इंटरस्टिशियम, और सॉल्ट भी निकल रहा है तो ये कम नमकीन हुआ। और द मेडुला पानी निकल रहा है आपका हैंडलिज लूप से, वासा रेक्टा से सिर्फ NaCl निकल रहा है, तो मिला जुला के ये ग्रेडियंट मेंटेन हो जाता है। समझ में आया? हाँ, कोई सवाल है इससे?
ठीक, अब यही आप ये पैराग्राफ पढ़ो, समझ में आ जाएगा ना, समझा है। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 milliosmol per liter in the cortex to about 1200 milliosmol per liter in the inner medulla. This gradient is mainly caused by NaCl and urea. Correct? Clear है? भाषा रेक्टा में भी NaCl और वाटर का प्ले, सॉल्ट में सिर्फ NaCl, और ट्यूब्यूल में NaCl, NaCl का एग्जिट कहां से हो रहा था? थिक सेगमेंट से ऑफ द असेंडिंग आर्म ऑफ हेनलीज लूप हो रहा था ना। डिसेंडिंग आर्म में तो सिर्फ वाटर का एग्जिट हो रहा है, और यूरिया का एंट्री इन द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग आर्म ऑफ हेनलीज लूप। यूरिया का सिक्रीशन हो रहा है वहां। वह सिक्रीटेड यूरिया कहां से आ रहा है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम से। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वो यूरिया कहां से आ रहा है? कलेक्टिंग ट्यूब से। पता है कलेक्टिंग ट्यूब से आ रहा है ना, भूल गया तुम जल्दी। ये आ रहा है कलेक्टिंग ट्यूब से यूरिया। ये यूरिया एंट्री किया तो ये, तो कहने का मतलब ये दो कंपाउंड्स NaCl एंड यूरिया, these two are responsible for maintaining this concentration gradient present in the renal medulla. NaCl is, अब देखिए कैसे ये 4 लाइन में लिख दिया, जो अभी 1 घंटा में 2 घंटा आपको सुनता है, कितना हो गया टाइम, 8 बजने वाला। NaCl is transported, लेकिन ये 4 लाइन आप अकेले ऐसे पढ़ लो तो नहीं समझ में आएगा। सी, इसीलिए कहते हैं किताब बहुत खूबसूरत बुक, बहुत ही शॉर्ट में इसने पूरे प्रोसेस को लिख दिया। NaCl is transported by the ascending limb, ये शुरू किया है ascending limb से of the Henle's limbs। फिगर सामने रखिए बुक में और कोरिलेट करते जाइए। कौन सा फिगर? यही वाला फिगर, अब जो पढ़ रहे हैं उसको कोरिलेट करते जाइए। ascending limb, NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. See, in the thick segment of the ascending limb, here NaCl is transported from the lumen of the tubule to vasa recta. ये लिखा हुआ है ना, NaCl is transported by the ascending limb of the Henle's loop, और ये एक्सचेंज हो रहा है कहां पर? असेंडिंग लूप के ऊपर है डिसेंडिंग लूप ऑफ द वासा रेक्टा। डिसेंडिंग लूप ऑफ द वासा रेक्टा से यह एक्सचेंज हो रहा है। देखिए NaCl is entering in the descending loop of vasa recta, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो, ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है। जो NaCl के निकलने से, फिल्ट्रेट के निकलने से फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो रही थी, वही NaCl फिर घुस गया ब्लड में, वासा रेक्टा में, और ब्लड की ऑस्मोलरिटी इंक्रीज। NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. NaCl ascending limb, ascending portion of the vasa recta. vasa recta के ascending portion से, from this segment, NaCl is released back to the interstitium. NaCl vasa recta से निकल गए, तो इसको आप पॉइंट वाइज लिख लो। शुरू करना जैसे बुक में शुरू किया है, फ्रॉम द डिसेंडिंग आर्म ऑफ द
Henle's loop, NaCl is coming out and entering the ascending arm of vasa recta. Sorry, I बोलो ascending, descending, plus minus. See, I'm repeating it again. From the thick segment of the ascending arm of the Henle's loop, NaCl is coming out and it is entering the descending arm of the vasa recta. Point number 1. Second point, from the this NaCl is entering is NaCl is coming out of the ascending arm of the vasa recta, and it is coming back to the medullary interstitium. The second point, NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. Similarly, small amounts of urea enter the thin segment of ascending limb of the Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. NaCl का साइकिल देख लिए, मेडुला रीजन में कैसे मेंटेन किए हुए ग्रेडियंट को, NaCl निकल रहा है कहां से, बोलो कितना बार बोले, कहां से निकल रहा है NaCl, जोर से बोलो। थिक सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग आर्म से NaCl निकल रहा है, वो NaCl निकल के जा कहा रहा है डिसेंडिंग आर्म ऑफ द भासा रेक्टा में, वो NaCl ऐड हुआ और डिसेंडिंग आर्म ऑफ द भासा रेक्टा से ब्लड का फ्लो फिर जाएगा असेंडिंग आर्म में भासा रेक्टा के, और उस असेंडिंग आर्म ऑफ द भासा रेक्टा से फिर NaCl निकल करके इंटरस्टिशियम में आ जाएगा, किडनी के इंटरस्टिशियम में। ये हो गया NaCl का साइकिल इन द रीनल मेडुला। NaCl का एक अमाउंट रीनल मेडुला में हमेशा मौजूद है, बढ़ते और घटते क्रम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रूप में। दूसरा कंपाउंड था यूरिया, जो कि मेंटेन किए हुए इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, यस कि नो। अब उसके बारे में बात लिखा हुआ है कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, एंड दिस यूरिया इज कमिंग फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। Okay, so a small amount of urea is entering the Henle's loop from the medullary interstitium. कलेक्टिंग ट्यूब से, देखो कंफ्यूज मत, कलेक्टिंग ट्यूब के पास भासा रेक्टा है क्या, नहीं है ना, फिगर देखो, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है यहाँ पर अगल बगल ब्लड वेसल, भासा रेक्टा है नहीं, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जो चीज निकलेगा वो कहाँ जाएगा, भासा रेक्टा में तो नहीं जाएगा, जाएगा उसके बगल वाले टिश्यूज में। इसलिए बोल रहा है कलेक्टिंग ट्यूब से यूरिया और पानी जो निकल रहा है वह जा रहा है इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। और जो यूरिया गया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कलेक्टिंग ट्यूब से, वह यूरिया फिर एंटर किया थिन सेगमेंट ऑफ द हेनली लूप। थिन सेगमेंट ऑफ द हेनली लूप में यूरिया बताया था ऐसे आ रहा है यूरिया, वो आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम में आ रहा है कलेक्टिंग ट्यूब से, गॉट दिस पॉइंट। वही लाइन लिखा हुआ है यहाँ, small amounts of urea enters the thin segment of the ascending limb of Henle's loop। ये बात को खा जाता है एनसीईआरटी का किताब बीच में, इसमें हिडन मीनिंग होता है, लाइन के अंदर में घुसा हुआ मीनिंग। इसमें ये नहीं लिखा कि हेनलीज लूप में कहां से आया है, नहीं लिखा, चबा नीचे लिखा है वो कलेक्टिंग ट्यूब के साथ जोड़ के लिखा है,
तो अब आपको मतलब निकालना पड़ेगा कि जब कलेक्टिंग ट्यूब से वहां आ रहा है इंटरस्टिशियम में, तो हेनलीज लूप में भी इंटरस्टिशियम से ही आ रहा होगा, वो आपको डेराइव करना पड़ेगा इसका लाइन। और रेफरेंस बुक में क्या रहता है, सब डायरेक्ट लिखा रहता है। अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है एनसीईआरटी किताब, समझे। इसलिए कहते हैं बहुत बेहतरीन किताब, मेंटल एक्सरसाइज करा देगा, पजल के जैसा। ऐसा थ्योरी का किताब है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करा देगा पढ़ते पढ़ते। जितना सोचोगे आप, विचार करोगे, उतना प्रैक्टिकल होता है ना, इतना एक्सपीरियंस देने। ओके, सो कहाँ पर थे। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया enters the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium. अब यहां पर खा गया है कि इंटरस्टिशियम में कैसे आया। अब हेनलीज लूप में आया वो यूरिया, तो वो कहां पर गया, फिल्ट्रेट में है। हेनलीज लूप के अंदर फिल्ट्रेट में यूरिया है, वो फिल्ट्रेट ट्रेवल करके गया असेंडिंग लिम्ब को क्रॉस करके डीसीटी में, वहां यूरिया के साथ कुछ नहीं हो रहा है। फिर आया कलेक्टिंग ट्यूब में यूरिया। ओके, अब कलेक्टिंग ट्यूब से वो फिर इंटरस्टिशियम में आ रहा है, वो चीज खा गया यार देखो, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. इसको पूरा समझ गए आप। द एबव डिस्क्राइब, तो NaCl का साइकिल चल रहा है और यूरिया का भी चल रहा है। NaCl का चल रहा है ज्यादातर साइकिल अपर मेडुला में, आउटर मेडुला में, और यूरिया का चल रहा है इनर मेडुला। इसीलिए इनर मेडुला का ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 1200 है। इनर मेडुला में बेसिकली NaCl और यूरिया दोनों, बट आउटर मेडुला में ओनली NaCl। ओके, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। सी, the above described transport of substance facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta, and this special arrangement is called as counter current mechanism. So this mechanism helps to maintain a concentration gradient. Because of this, a concentration gradient is maintained. Concentration पहले ही बता दिए आपको, यूरिन के कंसंट्रेट होने का कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनने का कारण काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म। ओके, काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म होने का कारण कारण स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ट्यूब्यूल्स in the form of like this tubule, renal tubule and vasa recta are arranged in such a way that the flow of these tubule, flow of the substance in these two tubes are in opposite direction. Okay. So this mechanism helps to maintain a concentration gradient. Which mechanism? Counter current mechanism is helping to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradients helps in easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate, and the filtrate is now called as urine. फाइनली फायदा क्या हो रहा है, इस कंसंट्रेशन, इतना नाटक जो किया ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाने के लिए, और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फाइनली यूरिन जो है कंसंट्रेट हो रहा है। देख लीजिए, उसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वाटर इज कमिंग आउट इन these regions as the collecting tubule go deeper in the medulla. Osmotic strength increases, more and more water is coming out and the filtrate is getting concentrated. समझा,
इसी को करने के लिए इतना ये नाटक, यह परिस्थिति पैदा करने के लिए। वाटर इज कमिंग आउट हियर एज ए पैसिव प्रोसेस, अपने आप स्वतः आ रहा है, कोई इसको पीछे से एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः आ रहा है पानी। क्यों आ रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आ रहा बात समझ में? इसी के लिए इतना हुआ। तो अब आपका तो कि नहीं सर ऐसा, काहे के लिए इतना पूरा हेनरी लूप में फिल्ट्रेट गया, यहाँ पर भी 300 है, और स्मॉलर स्ट्रेंथ यहाँ पर भी 300 है, यहीं पर डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। फिल्ट्रेट का क्या फर्क पड़ा यहाँ और यहाँ? एक ही समान रूप से गाढ़ा है। गाढ़ा का ही बात नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम की भी बात। आधा वॉल्यूम कम कर दिया, वेस्ट उतना ही है। आयंस का इंटरप्ले हो रहा है, कम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और उस सब के फलस्वरूप एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हुआ, जिसके जिसके वजह से फाइनली वाटर जो है मैक्सिमली इज ड्रेन्ड आउट। Presence of such interstitial, यही लाइन लिखा हुआ, presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. 4 गुना ज्यादा फिल्ट्रेट से गाढ़ा यूरिन हो जाता है। ओके, अब आप कहोगे 180 लीटर प्रोड्यूस हुआ और कर रहे हैं 1.5 लीटर, तो यहाँ तो गाढ़ा हो जाता है 100%, बहुत ज्यादा ना। तो आप ऐसे समझिए कि उसमें वाटर भी निकला, वाटर भी रिमूव हुआ, सॉल्ट्स भी रिमूव हुआ, और फाइनल प्रोडक्ट जो बचा उसका ऑस्मोलर स्ट्रेंथ जो है फिल्ट्रेट के ऑस्मोलर स्ट्रेंथ से 4 गुना। फिल्ट्रेट का ऑस्मोलर स्ट्रेंथ 300 है इनिशियल फिल्ट्रेट का, और फिल्ट्रेट का ऑस्मोलर स्ट्रेंथ मैक्सिमम 1200 तक गया इंग्लिश लूप। 300 चौका 1200, ये 300 और 1200 की वजह से ये जो 4 गुना डिफरेंस है ऑस्मोलर स्ट्रेंथ का, इस वजह से यूरिन जो है 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, इससे ब्लड से या इनिशियल फिल्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पर जो यूरिन है, हियर हियर जो यूरिन है उसका स्ट्रेंथ 1200 है। ओके, और यहाँ से फिर रीनल पैपिला के थ्रू या कैलाइसिस कैलिक्स में एंटर कर गया, वहां से यूरेटर में चला जाएगा। यू अंडरस्टूड? Do you have any question regarding this, the formation of urine or the concentration? Shall I summarize this? Okay, let me do this for you. I'm summarizing this.
The filtration is happening in the renal capsule because of the blood pressure. And as a result of this, what is happening? A filtrate is formed. Is formed, which is devoid of क्या क्या चीज नहीं है इसमें? Nutrients. Oh, sorry. Which is devoid of cells and proteins. Correct? What is happening next? This filtrate is entering the proximal convoluted tubule. So this filtrate is entering in the proximal convoluted tubule, and there selective reabsorption is occurring. Selective reabsorption of किसका? न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये फिल्ट्रेट में न्यूट्रिएंट्स हैं, फिल्ट्रेट में सेल और प्रोटीन ही नहीं है लेकिन न्यूट्रिएंट्स हैं. न्यूट्रिएंट्स, वाटर, salts, यही हो रहा है ना? यू कैन सी इन द बुक, ये फिगर में देखिए. हो रहा है ना? Selective reabsorption of nutrients, H2O, NaCl, bicarbonates भी. And secretion of ammonia and hydrogen ions for maintaining the pH. pH of the filtrate. Then this filtrate is now then coming in, descending arm of Henle's loop. Water is reabsorbed from descending. हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप लोग नोट में ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना. डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनलीज लूप. देन अब कहाँ है फिल्ट्रेट? यू टर्न करेगा. यू टर्न करने के बाद असेंडिंग आर्म में चढ़ा. असेंडिंग आर्म में थिन सेक्शन में पहले आएगा. ठीक. इन द थिन सेक्शन यूरिया इज secreted in the thin segment of ascending arm of Henle's loop.
Now the filtrate will move into the thick segment of the ascending arm of Henle's loop. So NaCl is removed in the thick segment of ascending arm of Henle's loop. Next, the filtrate is entering the DCT, and in DCT, selective reabsorption and secretion. Selective reabsorption of NaCl, water, bicarbonate, etc. And the secretion of K plus and H plus ions to maintain the pH. Now the filtrate will come in where collecting tube. Finally, water is reabsorbed maximally according to the body need to form concentrated urine. A small amount of urea is also reabsorbed. तो जानते हो क्यों reabsorb हुआ यूरिया? To increase the osmolarity of the inner medullary interstitium. So a small amount of urea is also reabsorbed by medullary interstitium from filtrate present in the collecting tubule. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट था, उस फिल्ट्रेट के अंदर जो यूरिया था, वो यूरिया उस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरस्टिशियम में आ गया। फिर वो यूरिया इंटरस्टिशियम से ट्रांसपोर्ट होकर के थिन सेगमेंट ऑफ द हेनलीज लूप में गया।
ओके, ये हो गया 8 स्टेप्स कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ यूरिन। अब इनके आपको लोकेशंस भी यहाँ पर मेंशन करने चाहिए। जैसे फिल्ट्रेशन is happening due to blood pressure in the renal corpuscles, and this filtrate is formed which is devoid of cells, and so this filtrate is first and second step. These two steps are happening in the where renal corpuscle. Selective reabsorption, and ये थर्ड वाला जो स्टेप है, that is happening in the PCT. Fourth, fifth, sixth. Fourth, fifth, and sixth. This is happening in the Henle's loop. Seventh, PCT. And the eighth step is happening in CT. तो बेसिकली हो क्या रहा है फिजियोलॉजी में, रीनल कॉर्पसल में क्या हो रहा है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं बार बार, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज पे बहुत काम किए हैं, इसलिए हम बता बार बार मेरे मुंह से निकलता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। मेरा रिसर्च वर्क में काफी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पीसीटी में क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। हेनलीज लूप में, हेनलीज लूप में रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन दोनों हो रहे हैं। यस, और टीसीटी में भी हो रहे हैं दोनों चीज। ठीक, सीटी में सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन का दायरा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, इतना हो गया। एंड सीटी में हो रहा है सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन। हेनलीज लूप में ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। हेनलीज लूप में एक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है इन सब के अलावा, ठीक है, इसका नाम है काउंटर करंट एक्सचेंज। सो इन द हेनलीज लूप, इन एसोसिएशन विथ भाषा रेक्टा, अकेले तो नहीं कर सकता ना, भाषा रेक्टा और इसका स्पेशल अरेंजमेंट है, इसीलिए हो रहा था ये, इन एसोसिएशन विथ भाषा रेक्टा। what it is doing, counter current mechanism. Okay, and this counter current mechanism was responsible for giving rise to, tell me, कितनी बार बोला हूं, giving rise to
concentration gradient which is present in renal medulla. So it is generating, counter current mechanism is generating concentration gradient of NaCl and urea in the medullary interstitium. हो रहा था ना? अब यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट is the driving force behind the process which is happening in the collecting tubule. Because of this concentration gradient, water in the large amount is coming out of the collection tubule, is coming out of the filtrate present in the collection tubule. So this is the concentration of urine increases. यूरिन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया. ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वजह है आपका थिन सेगमेंट में H2O is reabsorbed from descending arm of the thin segment. तो इसका भी यह वजह है. सेम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जो पानी निकला डिसेंडिंग आर्म से, डिसेंडिंग आर्म से भी पानी निकला था और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से भी पानी निकला. यहाँ से बहुत मात्रा में पानी निकला, यहाँ से भी बहुत मात्रा में पानी निकला. इन दोनों पानी निकलने की, जैसे इससे नीचे जा रहा वाटर बाहर आ रहा है, दोनों जगह पानी निकलने की वजह जो है वो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, उसका वजह. कुछ छूट गया इसमें? एनीथिंग लेफ्ट? यहाँ बगल में बना सकते हो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. आप रीनल कॉर्टेक्स, रीनल आउटर मेडुला, रीनल इनर medulla. The concentration gradient here is like this in the increasing order. छूटा इसमें? ठीक. Have you understood this process? Urine formation. What is time now? 8:26. ठीक है. जाइए नेक्स्ट क्लास में हम लोग. अब थोड़ा सा बचा है जो आपको समझने में डिफिकल्टी हो सकती थी, जो पोर्शन या जो हार्ड पोर्शन था